Good morning students, how are you? I hope you are staying at home and you are fine. Today we will start with a new chapter of science, the revision of a new chapter of science, that is light, shadow and reflection. The name of the chapter is light, shadows and reflections, and topics that we will cover in this chapter are light, luminous and non-luminous objects, transparent, translucent and opaque objects, rectilinear propagation of light, reflection of light, shadow, formation of shadow, plane mirror and its characteristics, and last topic will be pinhole camera. So these are the topics that we will cover in this chapter. So let's start the chapter. First of all, I want to explain you the meaning of light. What is light? Light is a form of energy which creates a sensation of vision, or we can simply say light is a form of energy that enable us to see different objects. ये जो light होता है बेटा, ये energy का एक प्रकार है जिससे हम चीज़ों को देख सकते हैं, ये हमें vision provide करती है to see different things. Okay, तो ये जो light होती है बेटा, light is very necessary to see this. हमें इस beautiful world को देखने के लिए light की बहुत ज़रूरत होती है. Okay, let's start with this chapter. Okay, now we will cover our first topic, that is luminous and non-luminous objects. Luminous objects. Luminous objects कौन से objects होते हैं बेटा? Luminous objects are those objects which emit their own light. Luminous objects ऐसे objects होते हैं जिनकी अपनी light होती है. Okay, जैसे sun, different stars, ट्यूब लाइट, कैंडल, दे एमिट देयर ओन लाइट. तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो इनकी अपनी खुद की लाइट होती है उन्हें हम बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. दूसरे होते हैं बेटा नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स आर ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट एमिट देयर ओन लाइट, जिनकी अपनी लाइट नहीं होती, जैसे फॉर एग्जांपल अ टेबल, a chair, that do not emit any light of their own. Planets also, moon is also a non-luminous object, because as you see moon shine in the sky, but moon is a non-luminous object. Moon moon reflects the light coming from the sun. Okay, so moon doesn't have its own light, so moon is considered as a non-luminous object. Now we will come to the next topic, that is transparent, translucent and opaque materials. Transparent materials. Transparent materials are materials which allow light to pass through them completely. Transparent material ऐसे materials होते हैं जो अपने में से light को completely pass होने देते हैं. For example, plain glass, air is also a transparent material. Let's take next, that is translucent materials. Translucent materials are materials which does not allow light to pass through them completely, or we can say which allow light to pass through them partially. जो है partially light को pass होने देते हैं उन्हें हम translucent objects बोलते हैं. For example, butter paper, फिल्टर पेपर वी कैन से, और वी कैन से फ्रोस्टेड ग्लास, जिनमें से धुंधला धुंधला दिखता है, क्लियरली विजिबल नहीं होता, वो हमारे ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स होते हैं. और थर्ड होते हैं बेटा हमारे ओपेक मटेरियल्स. ओपेक मटेरियल्स आर मटेरियल्स विच डज नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम, जो लाइट को बिल्कुल भी पास होने नहीं देते, उन्हें बिल्कुल ब्लॉक कर देते हैं, उन्हें हम बोलते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट. जैसे वुड, cement, these all are opaque objects, we cannot see through them. Okay, so this is about transparent, translucent and opaque objects. Next topic जो हम पढ़ेंगे बेटा वो है rectilinear propagation of light. Next is rectilinear propagation of light. Rectilinear propagation of light. Rectilinear propagation of light means that light always travel in a straight line. Light की जो ray होती है या beam होती है, beam is collection of a ray that always moves in a straight line. जो light ray होती है बेटा हमेशा वो straight line में travel करती है. It always travels in a straight line. So लाइट की इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट. उसके बाद लाइट की नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. नाउ वी विल टॉक अबाउट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. रिफ्लेक्शन, दिस इज अनदर प्रॉपर्टी ऑफ लाइट दैट इज नोन एज रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन में बेटा क्या होता है? Reflection is property of light in which light ray strikes a surface and bounce back.
सो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस, ठीक है, उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन हमारा दो तरह के सरफेस से होता है, आइदर आवर सरफेस विल बी स्मूथ एंड शाइनी और आवर सरफेस विल बी रफ एंड अनइवन, ठीक है। तो लाइट अगर स्मूथ और शाइनी से सरफेस से रिफ्लेक्ट हो रही है दैट इज़ रेगुलर रिफ्लेक्शन, और लाइट अगर अनइवन और हमारे वी कैन से रफ सरफेस से रिफ्लेक्ट हो रही है दैट इज कॉल्ड एज डिफ्यूज्ड और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। लेट्स सी विद द डायग्राम। सो रेगुलर रिफ्लेक्शन में बेटा क्या होता है, जितनी भी पैरेलल लाइट की रेज आती हैं वो किसी भी स्मूथ सरफेस से टकराकर पैरेलल ही रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। ओके, सो दिस इज अ डायग्राम ऑफ रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में जितनी भी पैरेलल लाइज आई रिफ्लेक्ट होके पैरेलल ही चलेगी, लेकिन इरेगुलर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में हमारा सरफेस कैसा होता है, अनइवन होता है। तो जितनी भी पैरेलल रेज सोर्स से किसी भी लाइट सोर्स से आ रही हैं, दैट कैन बी अ ट्यूब लाइट, अ कैंडल और एनी अदर सोर्स, वो रिफ्लेक्ट होकर डिफरेंट डायरेक्शंस में स्प्रेड हो जाती हैं, ठीक है। तो उनकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं रहती, वो डिफरेंट डायरेक्शन में स्प्रेड अप हो जाती हैं। इसे हम बोलते हैं इरेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन अगर हमारा स्मूथ और शाइनी सरफेस से हो रहा है दैट इज़ रेगुलर रिफ्लेक्शन, और अगर अनइवन रफ सरफेस से हो रहा है तो वो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है। रेगुलर रिफ्लेक्शन में ऑल द पैरेलल इनकमिंग रेज गोज पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन, एंड इन डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑल द पैरेलल इनकमिंग रेज स्प्रेड इन डिफरेंट डायरेक्शन। ओके, नाउ वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर दैट इज शैडो। अब बात करेंगे हम शैडो की। ठीक है, शेडो क्या होता है बेटा, शेडो इज़ अ डार्क पैच ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन, ठीक है। हम शेडोज़ होती क्या है बेटा, डार्क पैचेस होते हैं जिन्हें हम किसी भी स्क्रीन में ऑब्टेन कर सकते हैं, जिसे आप अपनी परछाई भी कहते हो, दे आर शेडोज़। ये शेडोज़ बनती कैसे हैं, ओके, हाउ शेडोज़ आर फॉर्म। शेडोज़ आर फॉर्म व्हेन सम ओपेक ऑब्जेक्ट्स कम इन द पाथ ऑफ लाइट सोर्स। कोई भी लाइट सोर्स है और उसके सामने कोई ओपेक ऑब्जेक्ट आता है, ओपेक बॉडी आ जाती है। ओपेक बॉडी कौन सी होती है बेटा, जो लाइट को बिल्कुल भी पास होने नहीं देती। आवर बॉडी इज़ ऑल्सो कंसीडर्ड एज ओपेक। तो अगर लाइट के सोर्स के सामने कोई भी ओपेक बॉडी आ जाए तो उसकी शेडो फॉर्म होती है स्क्रीन पे। स्क्रीन कोई भी चीज़ हो सकती है, दैट कैन बी अ वॉल, दैट कैन बी अ ग्राउंड, जिस पे आपकी शेडो बन सके, ठीक है। तो शेडो को फॉर्म करने के लिए 3 कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं। 3 conditions are required for formation of shadow. Number 1 is light source. Number 2 is opaque body, opaque object or body, and number 3 is screen. तो इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत होती है हमें किसी भी शेडो को फॉर्म करने के लिए। और ये जो शेडोज़ होती हैं ये कैसी होती हैं, जैसे मैंने बताया बेटा, ये जो शेडोज़ होती हैं बेटा डार्क कलर की होती हैं, और इनमें 2 रीजन्स फॉर्म होते हैं। जो अंटीरियर रीजन होता है शेडो का, जो ज़्यादा डार्क होता है उसे हम अम्ब्रा बोलते हैं, और जो आउटर लाइटर रीजन होता है उसे हम पेनम्ब्रा बोलते हैं। और ये जो बच्चा शेडोज़ होती हैं बेटा ये तब फॉर्म होती हैं जब लाइट सोर्स के पास में कोई भी ओपेक बॉडी आ जाए तो स्क्रीन पे ये शेडोज़ फॉर्म होती हैं, जैसे आप नॉर्मली रूटीन में शेडोज़ देखते हैं। और इन जो शेडो का साइज़ होता है उसमें भी हर टाइम वेरिएशन आती रहती है। जैसे कि अगर हम अर्ली मॉर्निंग या लेट इवनिंग पे देखें तो शेडो का साइज़ जो होता है वो मैक्सिमम होता है। और अगर नून की बात करें, एट नून द शॉर्टेस्ट शेडो इज़ फॉर्म। तो नून टाइम पे द शेडो विच इज़ फॉर्म्ड इज शॉर्टेस्ट इन हाइट, एंड इन मॉर्निंग एंड इवनिंग द साइज ऑफ शेडो इंक्रीजेज, एंड एट ड्यूरिंग sunrise and sunfall at that time the size of shadow becomes maximum। तो क्या होता है, शेडो की साइज़ में बेटा वेरिएशन आती रहती है, ठीक है। उसका डिपेंड करता है कि लाइट सोर्स से उसका डिस्टेंस क्या है या हमारे स्क्रीन से उसका डिस्टेंस क्या है। अकॉर्डिंग टू दैट देयर इज़ वेरिएशंस इन द साइज ऑफ द शेडो। उसी तरह नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम, दैट इज़ प्लेन मिरर and its characteristics। ओके,
प्लेन मिरर की बात करें, सबसे पहले मिरर्स क्या होते हैं बेटा? मिरर्स आर स्मूथ एंड शाइनी सर्फेसेस विच शोज रिफ्लेक्शन। मिरर जो होते हैं स्मूथ चमकदार सर्फेसेस होते हैं जो रिफ्लेक्शन शो करते हैं। ओके, ये जो मिरर्स होते हैं, प्लेन मिरर्स आप सभी ने अपने घरों में देखे हैं। नॉर्मली आपने ड्रेसअप होना है या यू वांट टू लुक एट योरसेल्फ, यू यूज़ अ प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर में जो आपकी इमेज बनती है, जो आपको प्लेन मिरर में अपनी रिफ्लेक्शन दिखाई दे रही है, उसे हम इमेज बोलते हैं। और वो जो इमेज बनती है उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, मतलब कैसी इमेज बनती है हमारी प्लेन मिरर में। सबसे पहले बात करें इमेज की, तो उसका सेम साइज़ होता है। जितना ऑब्जेक्ट, जिस भी ऑब्जेक्ट को, इवन यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर, तो जितना साइज़ का ऑब्जेक्ट होता है उतनी ही साइज़ की इमेज बनती है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है सेम डिस्टेंस। उसी तरह जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखते हो उतने ही डिस्टेंस में प्लेन मिरर के अंदर आपको अपनी इमेज दिखाई देती है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, और सेम डिस्टेंस पे ही हमारी इमेज बनती है। उसके अलावा बेटा नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वर्चुअल एंड डायरेक्ट। अब व्हाट इज दिस वर्चुअल एंड डायरेक्ट? इसको समझने के लिए हमें दो तरह की इमेजेस के बारे में पता होना चाहिए, दैट इज़ रियल एंड वर्चुअल इमेजेस। रियल इमेजेस आर इमेजेस विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। रियल इमेजेस ऐसी इमेजेस होती हैं जिनको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं, ऐसी इमेजेस को हम रियल इमेजेस कहते हैं। और वर्चुअल इमेजेस ऐसी इमेजेस होती हैं हम जिनको स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते। तो अगर आप प्रोजेक्टर में, एलईडीज़ में इमेजेस देखेंगे तो एग्जैक्टली स्क्रीन पे आती हैं, वो रियल इमेजेस होती हैं। प्लेन मिरर में जो इमेज होती है आपको अंदर की साइड दिखती है, बैक साइड दिखती है, तो वो हमारी वर्चुअल इमेज होती है। तो प्लेन मिरर में बेटा हमारी वर्चुअल और सीधी इमेज बनती है, ठीक है, अपसाइड डाउन कोई चेंज नहीं होता, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज लेटरली इन्वर्टेड। प्लेन मिरर में जो हमारी वेव होती है बेटा वो लेटरली इन्वर्टेड होती है। लेटरल इन्वर्टेड मतलब लेफ्ट अपीयर राइट एंड राइट अपीयर लेफ्ट। अगर प्लेन मिरर, आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर और मेरे लेफ्ट हैंड में ये मार्कर है, तो मिरर में कौन सी साइड में दिखाई देता है? राइट में। तो मतलब वहाँ लेफ्ट राइट इन्वर्शन होता है, लेफ्ट अपीयर राइट एंड राइट अपीयर लेफ्ट। इसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्शन। ओके, यहाँ जो इमेज बनती है वो लेटरली इन्वर्टेड होती है, लेफ्ट साइड राइट पे दिखाई देती है, राइट साइड लेफ्ट पे दिखाई देती है। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ एम्बुलेंस। एम्बुलेंस में जो वर्ड होते हैं AMBULANCE, एम्बुलेंस, वो जो होते हैं रिवर्स ऑर्डर में लिखे होते हैं। ऐसा क्यों होता है कि जब सामने आगे वाला ड्राइवर अपने प्लेन मिरर में उन वर्ड्स को देखेगा तो उसका जो ऑर्डर है वो सीधा हो जाएगा, क्योंकि लेफ़्ट राइट इन्वर्जन होता है मिरर में, इसलिए वो रिवर्स ऑर्डर में लिखे जाते हैं ताकि जो आगे वाला ड्राइवर है वो उसे करेक्टली देख सके। ओके, तो वहाँ पे क्या होता है बेटा, लेफ़्ट राइट इन्वर्जन होता है हमारे प्लेन मिरर में, जिसे हम लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं, और जो हमारी इमेज होती है वो लिटरली इन्वर्टेड होती है प्लेन मिरर में। करेक्ट? तो यहाँ पे दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ plane mirror. Okay, now we will talk about the last topic of this chapter, that is pinhole camera. पिन होल कैमरा बेटा, जब हमारे कैमरास नहीं थे, अभी तो बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है, तो बहुत तरह के एडवांस कैमरास हैं हमारे पास। लेकिन जब इनिशियली हमारे पास कैमरा नहीं होते तो हम एक सिंपल सा कैमरा यूज़ करते थे, ठीक है, विच इज़ नॉट वेरी अफेक्टिव बट यूज इन अर्लियर टाइम, जिसे हम बोलते हैं पिन होल कैमरा। ठीक है, तो इस पिन होल कैमरा का कंस्ट्रक्शन कैसे होती है, कैसे डिज़ाइन किया जाता है? इस पिन होल कैमरा को डिज़ाइन करने के लिए हम 2 कार्डबोर्ड बॉक्सेस लेते हैं। We used to take 2 cardboard boxes of different sizes. One is smaller and other is लार्जर। तो यहाँ पे हम 2 बॉक्सेस ले लेते हैं जो डिफरेंट साइज़ के हमारे होते हैं। ठीक है, हमने बॉक्सेस इस तरह के लेने हैं या कार्डबोर्ड इस तरह के लेने हैं कि जो हमारा बिगर बॉक्स है उसके अंदर जो स्मॉलर बॉक्स है वो इजीली स्लाइड कर सके। ओके, उसकी जो स्लाइडिंग मूवमेंट है वो बड़े स्मॉलर बॉक्स ही बिगर बॉक्स में ईजिली हो सके। ओके, और जो हम बड़ा बॉक्स में एक साइड क्या कर देते हैं, होल, और स्मॉलर बॉक्स के एक साइड पे हम स्क्वायर कट करके ट्रेसिंग पेपर लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक होल कर दिया है और यहाँ हमने एक ट्रेसिंग पेपर यूज़ किया है। ठीक है, नाउ हाउ दिस वर्क,
ओके ये पिन होल कैमरा वर्क कैसे करेगा, हम बड़े बॉक्स के अंदर स्मॉलर बॉक्स को स्लाइड करेंगे एंड विल लुक थ्रू द होल ऑफ बिगर बॉक्स, जो बड़े बॉक्स का होल है उसमें से देखेंगे और छोटे बॉक्स को स्लाइड करेंगे। तो क्या होगा, जो हमारा ट्रेसिंग पेपर लिखा है जिस सब्जेक्ट को हम देख रहे हैं उस हॉल से, तो ट्रेसिंग पेपर पे उसकी एक इमेज बन जाएगी, ठीक है। और वो जो इमेज बनती है बेटा वो बहुत ही अनक्लियर इमेज होती है, धुंधली इमेज होती है और इन्वर्टेड भी होती है। अगर हम ट्री को देख रहे हैं तो ट्री हमें इन्वर्टेड पोजीशन पे दिखाई देगा। तो ये एक ऐसा कैमरा है जो अर्लियर टाइम्स में यूज़ किया जाता था, ठीक है। और इसमें जो इमेज बनती थी वो इन्वर्टेड बनती थी और अनक्लियर बनती थी, ओके। So you can also try this activity of making of pinhole camera, and we will discuss it later in next class also, okay. This is all for this chapter, okay. So you will revise this chapter, you will have a quick recap of this chapter through the video, and you will revise this chapter properly, okay. That's it for today, okay. Thank you, and stay safe, stay home, and keep learning with me.